So this is one layer, and here we have multiple layers in the deep learning neural network. And if we see the performance of the simple one is means that I'm talking about this perceptron is less than the complex one. Okay, so जितना ज़्यादा हम न्यूरल नेटवर्क में कॉम्प्लेक्सिटी लाएंगे, हिडन लेयर्स लाएंगे, उसका परफॉर्मेंस भी उतना ही आपका बेटर होगा. ठीक है. Now, combination of neural networks were layers. These are the input layers, and इनपुट लेयर से जो भी आ रहे हैं वो हम सम अप करके हिडन लेयर में भेज रहे हैं. आउटपुट लेयर में अल्टीमेटली वो इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं. But for that, we have to apply some activation function. We will go in details about them. So the input layer depicts the dimensions of the input vector. Hidden layers depicts the intermediary nodes that divide the input space into regions with soft boundaries. And the output layer depicts the output of the neural network. ओके, अब परसेप्ट्रन का ऊपर हम आज एक प्रैक्टिकल करेंगे. आई होप यू ऑल आर हैविंग लैपटॉप्स विथ यू, राइट? Yes, sir. You have laptop, right? Okay. So basically, I will suggest that we will do these practicals in Jupyter or Spider, and if you have less space available, then we can go for the Colab also. Okay. So दो तीन practical आज करेंगे हम. Okay. So first come to the perceptron. Perceptron is a fundamental type of artificial neural network designed for binary classification tasks. It computes a weighted sum of inputs, which is then passed through a step function to determine the output class. ठीक है. तो परसेप्टन मैंने जैसे बोला था आप लोगों को, वो एएनएन का सबसे फंडामेंटल टाइप है. हम यूज करते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, आइदर 0 और 1. इट कंप्यूट्स ए वेटेड सम. ये वेटेड सम को कंप्यूट करते हैं. ठीक है. वेटेड सम किसका? इनपुट का. एंड देन इट इज पास्ड थ्रू ए स्टेप फंक्शन टू डिटरमाइन द आउटपुट क्लास. इसका इक्वेशन तुम लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में लिख लेना. एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ डब्ल्यू एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन 0. अगर वेटेड सम प्लस बायस का अगर वैल्यू 0 से ज्यादा है तो उसका वैल्यू क्या होगा? उस फंक्शन का वैल्यू होगा 1. अगर 0 से कम है तो उसका वैल्यू होगा 0. तो दो ही इनपुट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा हमें, आइदर 1 और 0. क्लियर? इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दिस इक्वेशन? No, sir. Very good. So W denotes the vector of real valued weights, B denotes the bias, and this is an object. Bias is an object that adjusts the bounding line without any dependency on the input values, and X denotes the vector of the input X values. Now working तो ऑलरेडी देख ही लिए हो तुम, इसमें ज़्यादा और दिखाने की ज़रूरत नहीं है. और ज़्यादा अगर आपका वेट्स बढ़ जाएगा, मतलब आपका इनपुट बढ़ जाएगा, तो आपको ऐसे ही साम करना पड़ेगा. x1w1 प्लस x2w2 प्लस x3w3 से वी हैव 6 इनपुट्स. सिमिलरली x4w4 अप टू x6w6. Right, the output is calculated for any number of inputs. It is a linear classification problem. It can learn a decision boundary that is a straight line or hyperplane. So at every process of input, the perceptron produces the output either 0 or 1, which is compared to the ground truth. Weights are adjusted accordingly for better prediction, and this works well when the classes are linearly separable. So ये इसका एक फिगर बना लेना. ठीक है. इक्वेशन समझ में आ ही गया. एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी. नाउ यहाँ पे आपको दिख रहा है ना एक एक्टिवेशन फंक्शन. एक्टिवेशन फंक्शन हम यूज करते हैं नॉन लिनियरिटी आने के लिए, बट इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि व्हाट डज इट मीन बाय दिस नॉन लिनियरिटी और एक्टिवेशन फंक्शन. So ultimately, y predicted. So input, weights, bias, summation function, activation functions. So inputs माने जो भी वैल्यू हम दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, दे आर
a set of values for which one needs to predict the output value, which they are a set of real values that are associated with each feature and state the importance of the feature in predicting the final value. And bias, this is used for shifting the activation function left or right and can be referred to as y-intercept in the line equation summation. It binds the weights and inputs together and finds their sum. An activation function used to depict the non-linearity in the model. ठीक है? So let's come back to the practical. यहाँ तक के हम पढ़ लिया अभी. Let's come back to the practical. So you are ready for the practical, right? Okay. First task. We will compute a weighted sum. अभी तुम लोग मुझे बताओ, वेटेड सम का कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर हो गया ना? तो इसमें कोई डाउट नहीं है? You have no doubt on that? Okay. I also hope that you are familiar with Python. If you are not familiar with Python, you can pause me and you can ask me at any time. Okay. So this is a Python program basically. Okay. इसके लिए हमने क्या किया? पहले हमें कुछ लाइब्रेरी फंक्शन को इंपोर्ट करना पड़ता है, राइट? दस मिनट. ओके. इंपोर्ट numpy एस np. हम इंपोर्ट numpy क्यों करते हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी? क्योंकि न्यूमेरिकल जो भी काम करना पड़ता है ना, न्यूमेरिकल जैसे कि आप लोग प्लस माइनस, ठीक है, एरे, ये सब का काम जो करना पड़ता है, इसके लिए हमें numpy लाइब्रेरी फंक्शन को, लाइब्रेरी फाइल को यूज करना पड़ता है. ओके. सो इंपोर्ट numpy एस np. देन, और numpy का सबसे फेमस चीज क्या है? इट हैज एरे, राइट? Now, x is equal to np.array 23 and w is equal to np.array 45. तो इसमें एक array लिया है. Tell me what is the dimension of this array? Dimension क्या होगा इसका, इस array का? सिर्फ मैंने लिखा सपोज 2 3. ये कितने डायमेंशन का होगा? 2x2. इसमें 2 क्रॉस 2. How many rows here? 1. 1. How many columns here? Anyway, so that's see, in numpy array, when the number of square bracket we use denotes the dimension. यहाँ पे आपने सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है, राइट? यस और नो? एक ही स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट और सिंगल डायमेंशन. गॉट इट? सपोज इसमें मैंने 2 लगा दिया, तो ये कितने डायमेंशन का हो जाएगा? Dimensional. 2 डायमेंशन. ठीक है. तो ये याद रखना, जितने भी आप यहाँ पे लगाओगे वो उतने नंबर ऑफ डायमेंशंस का एरे बनेगा. एरे तो सबको आते हैं ना, यू नो अबाउट एरे, राइट? एरे मींस सिमिलर और कलेक्शन ऑफ सिमिलर और होमोजेनियस एलिमेंट्स. ठीक है. मतलब एक जैसा एलिमेंट. से इंटीजर मतलब इंटीजर, इंटीजर तो जानते हो ना, 1 2 3 ये सब. फ्लोट मतलब क्या होता है? 1.4 2.3 लाइक दैट. ठीक है. कैरेक्टर मतलब क्या होता है? से DIB लाइक दैट. ठीक है. ये सुनो. सो जो भी वैल्यू पुट करोगे एक ही जैसा होना चाहिए, दैट इज एरे. तो पहले हमने एक्स बनाया एरे जिसमें वैल्यू है 2 3. उसके बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू जो एरे बनाया वेट्स के लिए, ये तो इनपुट था. अब उसके वेट्स हमने दिया 4 और 5. और साथ में हमने बायस डिफाइन किया. बायस, बायस ये वैल्यू मैंडेटरी नहीं है, ये वैल्यू दे के आप आउटपुट को चेंज कर सकते हो, राइट? उसके बाद हमने क्या किया?
NP डॉट XW प्लस बी। अगर इसको आप लिखोगे तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, WX प्लस बी। मैं अगर लिखूंगा y इज इक्वल टू, यही कर रहा हूं ना। यस और नो? ठीक है। हर एक इनपुट और उसका वेट्स को मल्टीप्लाई करके उसके साथ लास्ट में हमने बी को ऐड किया, ये हो जाएगा हमारा आउटपुट। ठीक है। देन वेटेड सम इज इक्वल टू आउटपुट। ये क्या किया हमने, वेटेड सम। सिर्फ 2 + 3 नहीं किया, क्या किया, 2 × 4 प्लस 3 × 5 प्लस बी। कितना होगा 2 × 4? 2 × 4 इज हाउ मच? 8. And 3 × 5? 15. Okay, very good. Then इन दोनों को जुक करेंगे तो प्लस करेंगे तो क्या होगा? 23. बात हमने इसके साथ क्या ऐड किया? B. बी क्या है? 1. बायस 1। ठीक है, तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें? 24. वेरी गुड। सो ये 24 मिल जाए, इसी को हम बोलते हैं वेटेड सम, जो कि हम परसेप्टन में यूज करते हैं। तो ये प्रोग्राम क्लियर हो गया। इसको हमने इंप्लीमेंट किया है यहाँ पे, देखो। दिस इज नोन एज कोलैब। क्या बोलते हैं इसको? कोलैब। ठीक है। क्यों कोलैब में कर रहा हूँ, सपोज सबके पास जो सिस्टम है वो हाई कॉन्फ़िगरेशन का नहीं भी हो सकते हैं, राइट? क्योंकि जो डीप लर्निंग का प्रैक्टिकल्स है ना, उसके लिए आपको थोड़ा हैवी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है। ठीक है। ये तो सिंपल से है, हम बाद में जब हैवी वाला करेंगे उसके लिए आपका सिस्टम में कैपेसिटी होना चाहिए, जैसे कि जीपीयू होना चाहिए। ठीक है। रैम, ये सब ज़्यादा होना चाहिए। तो उसका और एक ऑप्शन होता है, आप कोलैब में करो। कोलैब इज द गूगल्स लैब, राइट? इसमें कुछ नहीं, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है, कोड। इसमें क्लिक करो तो यहाँ पे आप अपना कोड को टाइप कर सकते हो, राइट? तो हमने अभी ये प्रोग्राम बनाया था। import numpy as np, x np.array2t, w np.array45, bias at किया 1, output is np.x, w plus b, weighted sum is equal to output। तो रन कैसे करेंगे ये दिखाई दे रहा है, यू कैन सी। मैं तो ऑलरेडी रन करके रखा हूँ, इसीलिए यहाँ पे दिखाया है 0 सेकेंड पहले से रन है। फिर से रन करते हैं हम। रन करते वक्त ये हो गया और इस यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो आउटपुट हमें क्या मिला, वेटेड सम 24। किसी के भी दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि हमको ये कोलैब कहाँ से खोलना पड़ेगा? कैन यू ओपन इट और नॉट? अरे पूछोगे तभी समझ में आएगा ना मुझे, बिकॉज इस क्लास के बाद तुमको ये 2 प्रैक्टिकल करके मुझे ग्रुप में दिखाना पड़ेगा। अगर कोई डाउट हो रहा है ना, मुझे अभी पूछ लो कहाँ से आया है ये। I suppose no doubt. Okay. Now let's come to the next one. Okay. सेकेंड टास्क जो हम करेंगे वो है एक्टिवेशन फंक्शन। अभी से वेटेड सम हमें मिला 2.5। अब एक्टिवेशन फंक्शन का मतलब क्या होगा कि हमें आउटपुट को आइदर 0 और 1 में लाना है। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक सिंपल सा हम कोड लिखेंगे, इफ दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आउटपुट 1, एल्स आउटपुट 0। ठीक है। तो क्योंकि पहले तो z इज इक्वल टू 2.5 डिफाइन करके रखा, और ये अभी जो हमने कैलकुलेट किया था उसके हिसाब से तो 24 मिला था, राइट? तो यह जो हमने किया, इससे क्या होगा, हमें एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में कैसे काम करते हैं ये समझ में आ जाएगा। तो दिस इज वन वेटेड सम से यहाँ पे मैंने 2.5 दिया हूँ, यू कैन चेंज इट टू एनी वन। इफ z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन आउटपुट 1, एल्स 0। Now here, as this is 2.5,
सो इट सेटिस्फाइड दिस वन। इफ का जो फर्स्ट पार्ट है ये सेटिस्फाई हो गया, तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा, ठीक है। आउटपुट इज 1। इज देयर एनी डाउट ऑन दिस प्रोग्राम? No, sir. No, sir. ओके, वेरी गुड। नाउ फर्स्ट प्रोग्राम में हमने देखा वेटेड सम, सेकेंड में हमने देखा एक्टिवेशन फंक्शन। अब इन दोनों को मिक्स करके हम एक प्रोग्राम देखते हैं। इंपोर्ट numpy as np, हर एक लाइन को अच्छे से देखना, ठीक है। इंपोर्ट matplotlib.pyplot as plot, यहाँ पे हमने numpy यूज किया है और मैटप्लॉटलिब हम यूज करते हैं कुछ भी चीज प्लॉट करने के लिए। डेटा सेट जो हमने लिया है सिंपल एंड गेट। ओके, एंड गेट का मतलब ये होता है, अगर आपका 0 0 है तो 0 होगा, 0 1 होगा तो क्या होगा? 0 होगा, 0 1 0 होगा तो भी 0 होगा, बट 1 इंटू 1 होगा तो क्या होगा? 1 होगा। मतलब इफ बोथ इनपुट्स आर 1 देन ओनली आउटपुट इज 1। तो पहले हमने ये लिया वैल्यूज 0 0, जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 1 1 0 1 1, और उसका आउटपुट लाइक 0 0 0 के लिए 0, 0 1 के लिए 0, 1 0 के लिए 0 एंड 1 1 के लिए 1। उसके बाद हमने परसेप्ट्रॉन डिफाइन किया क्लास, ठीक है। अब इसके लिए हमने जो क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन है उसका कॉन्सेप्ट यूज किया है, क्योंकि उसमें हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, राइट। और इनिट क्या है? इनिट एक कंस्ट्रक्शन है जिसमें हमने डिफाइन कर दिया है पैरामीटर्स लाइक लर्निंग रेट। अभी बस थोड़ा सा देख लो, टेंशन मतलब, धीरे धीरे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा आपको ये सारे चीज समझ में आ जाएगा कि लर्निंग रेट क्या है, आइटरेशंस क्या है, ठीक है। तो लर्निंग रेट कैसे, कितने स्पीडीली और कितना स्लोली आप मशीन को मतलब मॉडल को लर्न करा रहे हो, ये एक हाइपर पैरामीटर है, ठीक है। और अभी के लिए उतना समझो, बाद में आप डिटेल में जाओगे, आज तो फर्स्ट क्लास है। तो एन आइटरेशन मतलब हाउ मेनी टाइम्स हम इसको रन कराएंगे, ठीक है। देन फिट मतलब वैल्यू को पुट किया, वैल्यू मतलब आपका एक्स एंड वाई, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए हमने वैल्यू को पुट किया। उसके बाद हमने कुछ इसमें डिफाइन किया कि कैसे आपका वैल्यूज आएंगे। तो उसमें सिंपली जो आपका वेटेड सम है और साथ में हमने बायस को ऐड किया, ठीक है। सो इफ लीनियर आउटपुट इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 देन प्रेडिक्टेड इज 1। सेम थिंग, खाली हमने यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डाटा के लिए यूज किया है, तो इसलिए दिस कोड लुक्स लाइक दिस। सो इफ लीनियर आउटपुट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब वो जो वेटेड सम जो है वो आपका 0 से ज्यादा है तो प्रेडिक्शन 1 आएगा, और कम होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और अपडेट करेंगे, और ये जो अपडेट कर रहे हैं इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ पे हमने लॉस रेट निकालते हैं। लॉस रेट का मतलब ये होता है, आपने प्रेडिक्ट किया से 1, बट रियल में होना चाहिए था 0। तो आपका जो डिफरेंस मिला है ना, दैट इज नॉन एज लॉस। अब पूरे ट्रेनिंग में सारे डेटा के लिए जितना मिलेगा ना, वो चीज को ऐड करके हम वो लॉस फंक्शन निकालते हैं, और हमारा मेन एम यही होता है कि उस लॉस को मिनिमाइज करना, ठीक है। सो डिफाइन प्रेडिक्ट सेल्फ कमा एक्स, कोई भी वैल्यू के लिए हम प्रेडिक्शन मतलब सपोज आपने पहले तो ट्रेन करा लिया, आप वी हैव ट्रेन, आफ्टर दैट वी पुट some values so that for that value we'll get some output. So ट्रेनिंग के लिए हमने लर्निंग रेट 0.1 ही रखा है, and after that we try to predict some value, say model dot predict x, and accordingly say some value for the bias, say predictions हमने ले लिया 0 0 0,0,1, then weight 0.2 0.1, then bias, these are the bias। तो ये प्रोग्राम थोड़ा टफ आपको लगेगा, बट फिर भी आज कर लो, क्योंकि धीरे धीरे आप, मैं जैसे बोला हूँ ना, लर्निंग रेट क्या है, आइटरेशन क्या है, ये सारे चीज समझ में आ जाएगा। बट फर्स्ट यू हैव टू नो
that how it is working, and for that these two programs are mandatory. Okay, so after this class now, what you will do, first thing is that you will do this program. ठीक है, ये करके ग्रुप में दिखाओगे आउटपुट. सेकेंड, ये जो आपका एक्टिवेशन फंक्शन का दिखाया था, स्टेप एक्टिवेशन फंक्शन, ये थर्ड में ये कोड आपको दे दूंगा, इसको सिर्फ करना. मैं इसमें नहीं पूछ रहा हूँ कि इसमें कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, खुद जानने की कोशिश करना. बाद में जो भी समझ में नहीं आएगा मैं दिखा दूंगा. इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, sir. Sir. Okay. So I suppose this is the first class of internship. So usually we'll go on and we'll do some practical and more practical, and we do some projects also. After that, if you learn these things, then we'll go through it. So whoever attended today's class, please give your attendance in the group, okay, and tag Angsuman sir so that he can keep a record. And please use your time, take half an hour to 1 hour to complete the practicals and put the outputs in the group. Okay? Sir, collab to Google খুলিছে নেকি তো? Yes, in the Google only you will get the collab. সেইটোৱেতো মই সুধি আছো. If you have any doubt, please ask me. Okay? কেনেকে কৰিব মই এবাৰ দেখুৱাই দিছো. তেনেহলে ইয়ালে যাবা, জাষ্ট collab টাইপ কৰিবা. ঠিক আছে? You type collab. It will automatically go to this. Okay, you go to here and see new notebook in Drive. You can see here. You click here. Okay, click करिबा new notebook in Drive. Then you will get this type of notebook. ये सब को बोलते हैं notebook. और ये पाइथन के लिए होता है. और ये जो एक्सटेंशन आपको दिखाई दे रहा है ना, IPYNB, this is the extension. Okay? Okay, sir. ठीक है. फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे प्लीज पूछ लेना, but don't skip it. Thank you. I hope Thank you. yes. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. And I am Dr. Dibos Dibora. I hope I forgot to give you a brief introduction. Maybe some of you are new for me. So I am Dr. Dibos Dibora, and we'll have brief introduction after a few classes. Thank you. Bye-bye.